Good morning, dear students. Welcome to all of you in computer class. Students, we are on chapter Spreadsheet Tools O Calc 1. And in previous video, we have learned about some basics terms of O Calc. Okay. So in this chapter, we will discuss today types of cell referencing and some related terms of cell referencing. So here, our first term, that is, what is cell referencing? A reference identifies a cell or a range of the cell on a worksheet and tell the Microsoft Excel or Calc where to look for the value or data the user want to use in formula. The user can also refer to the cell other sheet to the same workbook and to other workbook reference to cell. In other words, workbook are called links. That means, student, we create a cell referencing because our Excel or our spreadsheet got a value for required column, whatever we want to do in our worksheet in a table. Okay, so for example, here your first term is working with formula. So whenever we go with a formula, then you all know very well, if we create a small worksheet in our Excel, okay, or spreadsheet. So if there is an, for example, if we create a bill, so when we create a bill, there is a column of items, its price, its quantity, and rate, okay, according to which we find out the total price. So how you will find the total price? You multiply the number of items and the rate per items. Okay, so you multiply there in simple way. Okay, so here in this spreadsheet और MS sorry spreadsheet O Calc, ठीक है, and MS Excel, we use cell referencing because our Excel or spreadsheet got a value for our given data according in the form of cell address. ठीक है, if there is a small table, we write equal to sign इन नेक्स्ट कॉलम जहाँ भी आपको आंसर लेना होता था, एंड यू राइट द इक्वल टू साइन and the quantity or values, and you sum subtract whatever you want to do. ठीक है, but in most cases if we because spreadsheet that is used for mathematical calculation and that is very very complex, so there we use every time सम कॉलम सेम एंड रो नंबर्स आर डिफरेंट. ठीक है, हमें ऐसे कॉलम को भी उठाना होगा जहाँ कॉलम के एड्रेस तो सेम हो, रो का डिफरेंट हो. ठीक है, so for this purpose we use cell referencing, because with the help of cell referencing we got our value easier. Instead of we write the value one by one. Okay, so here our term is you write the formula using operator and function. Okay, and here what is the operator? That is plus, minus, multiplication, and different operation or function for that addition, subtraction, division, multiplication. Okay, so let's start our class. Here another definition for you. A cell reference refers to a cell or range of a cell on a worksheet and can be used in a formula. So the Microsoft Office Excel or O spreadsheet can find the value or data that you want that formula to calculate. ठीक है, तो सेल रेफरेंसिंग हम इसीलिए करते हैं कि आप को जो भी आउटपुट में चाहिए, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो वो डाटा एक्सेस करेंगे वो उस फॉर्मूले के थ्रू ही एक्सेस करेंगे. ठीक है, now here student, how many types of cell referencing we study in this video? That is 3: relative, mixed, absolute. Okay, and as you name know, you all know, mixed, that means combination of relative and absolute.
So here, for a brief description of the relative cell referencing and absolute cell referencing. Here, what is relative cell referencing? This is the most widely used type of cell referencing formula. Relative cell referencing are basic cell referencing that adjust and change when copy or when using autofill. So student, if we talk about relative cell referencing, that our computer system, MS Excel program or O Calc 1 by default use the relative cell referencing. Okay, whenever we do any कैलकुलेशन, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है, जो आपको बनी बनाई मिलेगी, वो रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में होगी. बिकॉज वेन एवर वी क्रिएट अ सिंपल टेबल एंड वी मेजर द टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम, ठीक है, तो वो यू सिंपली मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विथ रेट ऑफ पर आइटम, ठीक है. तो जो आपको सिंपली जिस फॉर्मूले से आपको वो मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ योर रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में ही रहता है. whenever we have create a big chart, ठीक है, and we have to do some more calculation. for example, कहीं परसेंटेज निकालना है, कहीं एवरेज निकालना है, ठीक है, कहीं आपको कोई टेबल राइट करना है. फॉर दिस पर्पज वी विल यूज mixed cell referencing or absolute cell referencing, because there you find that some columns have the same values we have to enter in एवरी टाइप ऑफ आंसर. बट रो का क्या करना होगा, आपको डिफरेंट वैल्यू लेना होगा फॉर्मूले में, ठीक है, जिससे कि आपके सभी जितने भी रो आपने राइट किया उन सभी के जो है कैलकुलेशन आपके पास आ जाए. तो इस तरह हमें करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग या फिर मिक्स सेल रेफरेंसिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट the first one is student relative cell referencing, and here you see employee ID, ठीक है, name, salary, room rent, and here you got total quantity, ठीक है. Here specify every column specify by letter and every row specify by number. Okay, so let's see. Here you see name, ठीक है, name of the person, salary and room rent, ठीक है. So here the total amount, here we add this term, ठीक है, 10,000 plus 3,000 that is 13,000. and we when we scroll this term, यहाँ पे जो आपका प्लस का साइन ऐसे बना हुआ है, ये जो आपका ऐसे बॉक्स किया हुआ है 13,000 को, और यहाँ पे एक प्लस का साइन ऐसे बना हुआ है छोटा सा. when we scroll down there to the fourth पर्सन, ठीक है, तो ये जो सेल उनका टोटल जो कॉस्ट है वो अपने आप ऐड होके आ जाएगा, उनकी सैलरी और वो उनका कितना रूम रेंट है वो टोटल आ जाएगा, ठीक है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. हियर वी हैवंट यूज द एब्सोल्यूट और मिक्स सेल रेफरेंसिंग. वी यूज हियर फॉर्मूला इन दिस फर्स्ट रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. हमने सिंपली क्या किया कि सम इज इक्वल टू सम एंड इन ब्रैकेट C2 रेंज, ठीक है, ये स्पेसिफाई द रेंज कोलोन एंड D2, ठीक है. तो हमने यही फार्मूला अप्लाई किया, और ये जो आपका फार्मूला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ कॉर्नर में प्लस साइन बना होता है. एंड व्हेन वी स्क्रॉल डाउन टू द फोर्थ, जहाँ तक भी आपको चाहिए, जैसे ही आप नीचे लाएंगे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इन BCD की वैल्यू वो अपने आप एक्सेस कर लेगा और आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. एज यू सी इन दिस टेबल, ठीक है, यहाँ पे इस प्लस साइन को स्क्रॉल डाउन किया गया है और ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है. सो हियर वी राइट सिंपली इक्वल टू साइन एंड द फंक्शन सम एंड इन ब्रैकेट द एड्रेस ऑफ द सेल. ओके, सो दिस इज अबाउट द सेल रेफरेंसिंग दैट इज रिलेटिव. नाउ वी टॉक अबाउट absolute cell referencing. Here employee ID, name and salary. Okay, and here we want to find out the 10% of the salary, ठीक है. तो 10% अगर हम किसी सैलरी का निकालना हो या किसी भी आइटम जो भी आपका टर्म है उसका 10% निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, यू स्टडी इन मैथ, ठीक है, मैथ में भी आपने परसेंटेज निकालना पढ़ा हुआ होगा, ठीक है. सो हियर वी सिंपली वी राइट दैट वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 10% प्लस जो वो वैल्यू आपकी थी,
ठीक है। सो हियर वी राइट द सेल एड्रेस, ठीक है। क्या हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सैलरी का 10% निकालना है, ठीक है। सो वी राइट इन एड्रेस, ठीक है। हियर जिस भी कॉलम में आपको उस वैल्यू उतनी वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे इक्वल टू C8 क्या है आपका, यहाँ से ABC, ठीक है, क्योंकि इस सैलरी का हमें निकालना है तो C8 आपने राइट कर दिया, मल्टीप्लाई विद D7 वैल्यू क्या है 10%, तो 10% आपके किस में है D एंड 7, ठीक है। तो C8 मल्टीप्लाई विद D7, अब हम ये तो 10% का हो गया, अब 10% हमें उस सैलरी का निकालना है तो उतने में उसको प्लस करना पड़ेगा ना, तो प्लस C8, ठीक है। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, बट वी सी हियर व्हेन वी स्क्रॉल दिस प्लस साइन, ठीक है, हम जब डाउन ले जाएंगे फोर्थ रो तक, ठीक है, सॉरी फोर्थ एम्प्लॉय तक, फोर्थ एम्प्लॉय आईडी तक, तो आपको वही सेम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी इनके डाटा के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दिस टेक द वैल्यू एज अ रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग। फॉर दिस पर्पस व्हाट वी विल डू हियर, देखिए व्हेन वी स्क्रॉल डाउन दिस फार्मूला, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन किया था तो आपको उसके अकॉर्डिंग मिला था, बिकॉज दिस इज रिलेटिव। लेकिन अगर यही हम फार्मूला, क्योंकि ये हमारा फार्मूला इस्टेब्लिश हो गया कि C8 दैट मीन्स की सैलरी मल्टीप्लाई विद 10% प्लस वो सैलरी परसेंटेज ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। और जब हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही है। सो दिस इज योर नॉट करेक्ट आंसर। सो फॉर दिस पर्पज वी विल यूज ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, ठीक है। व्हाट वी विल डू हियर, तो हम उस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वी राइट इज इक्वल टू साइन C8, ठीक है। अब C8 में हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, यानी C8 कॉलम से आपको क्या मिलेगा, वहाँ से सबकी सैलरी मिलेगी, मल्टीप्लाई विथ $D $7। वाई वी प्लेस $, टू कंस्टेंट द वैल्यू, ठीक है, उस वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल वी फाइंड आउट द 10% ऑफ द सैलरी ना, तो 10% आपका किस में है, D7 में है, ठीक है। तो D7 वाली वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। D आपका कॉलम उठाता है और 7 आपका रो, तो हमें कॉलम को भी नहीं चेंज करना है और रो को भी नहीं चेंज करना है, इसलिए हमने उसके आगे क्या प्लेस कर दिया, वी प्लेस द $, बिफोर D एंड बिफोर 7, ठीक है, प्लस C8, ठीक है। तो C8 वही जो सैलरी आपका उसमें प्लस होगा 10% प्लस सैलरी, तभी तो आपका 10 उस सैलरी का 10% निकलेगा, ठीक है। सो हियर वी प्लेस द फॉर्मूला, वी राइट द फॉर्मूला दिस वे, ठीक है। तो अब D और 7, जो D7 के पहले हमने $, लगा दिया, दैट इज़ द करेक्ट, हम कह सकते हैं कि दिस इज अबाउट आवर्स absolute cell referencing, ठीक है। now we see here when we run this formula, ठीक है, you got 10% of this salary, ठीक है। so this is all about our absolute cell referencing, because student whenever we apply a formula according to absolute cell referencing we put the $, before row and before column also, ठीक है। और हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वो वैल्यू कंस्टेंट चाहिए, 10% हमें सभी का निकालना है, ठीक है, इसलिए हमें वही रो और वही कॉलम की वैल्यू वो सेम चाहिए 10%, सैलरी बस आपका चेंज होगा, इसलिए आप C8 और C8 आपने जो बाद में प्लस किया था इसलिए वहाँ पे हम लोग $, नहीं लगाएंगे क्योंकि वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट मिक्स सेल रेफरेंसिंग। सो हियर स्टूडेंट फॉर मिक्स सेल रेफरेंसिंग यू सी हियर इज अ चार्ट, ठीक है, यहाँ एक चार्ट है, हियर रिटेन 1 2 3 एम्प्लॉय आईडी एंड हियर इन रो 2 3 4 लिखा हुआ है, ठीक है। सो हियर व्हाट वी विल डू, वी वांट टू मल्टीप्लाई टर्म 2 multiply by 2, 2 multiply by 3, 2 multiply by 4, ठीक है। जस्ट लाइक दिस वी वांट टू मल्टीप्लाई 3 multiply by 2, 3 multiply by 3, 3 multiply by 4। फॉर एग्जाम्पल एज अ टेबल वी वांट टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी कभी हमें
रो कॉलम को फिक्स करना पड़ रहा है, कभी कभी रो को फिक्स करना हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इस 2 वी मल्टीप्लाई इन 2 3 4 बाई 2, ठीक है। 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे, ठीक है। ये आपका कॉलम सेम रह रहा है लेकिन रो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। 3 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम 4 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में करेंगे, 4 में करेंगे। सो एवरी टाइम यू सी इन द टेबल कि समटाइम्स यू गॉट द कांस्टेंट कॉलम, कॉलम आपको वही चाहिए, रो चेंज हो रहा है, ठीक है। या फिर रो चेंज हो रहा है, आपको कॉलम की वैल्यू वही चाहिए, सो वी यूज देयर मिक्स सेल रेफरेंसिंग। ओके, सो हाउ वी विल राइट हियर, अगर हम सिंपली यहाँ पे अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, टेबल लिखने के लिए, तो हम सिंपली यहाँ हमने इक्वल टू साइन A14 मल्टीप्लाई विद B13, उनके सेल एड्रेस को लिख दिया 2 और 2 के, ठीक है। और अगर हम इसको स्क्रॉल ऐसे डाउन करेंगे तो वी गॉट आवर रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो हाउ वी विल डू दिस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में, वी राइट दिस फॉर्मूला दिस वे, ठीक है। हमने क्या किया, A14 बिफोर A14, ठीक है, तो ए के पहले आपने डॉलर साइन लगाया, दैट मीन्स कि जो ए कॉलम से आपकी वैल्यू उठ रही है वो सेम रहेगी। 14 जिस रो में आपका 14 आ रहा है वो वैल्यू आपकी चेंज होती रहेगी, मल्टीप्लाई विथ B13। अब यहाँ देख रहे हैं आप बी के पहले डॉलर साइन नहीं लगा हुआ है, यानी बी कॉलम से जो वैल्यू उठेगा वो आपका चेंज होता रहेगा, एंड डॉलर साइन बिफोर द 13, दैट मीन्स कि 13 रो का जो आपका वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बिफोर डॉलर साइन, कॉलम या रो के पहले जहाँ भी डॉलर साइन लगा है, दैट मीन्स कि आपके उस रो या कॉलम की वैल्यू वही रहेगी, और जिसके पहले कॉलम, जिस भी कॉलम या रो के पहले डॉलर साइन नहीं लगा है, इसका मतलब वहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। एंड व्हेन वी स्क्रॉल दिस फॉर्मूला तो यू गॉट द एग्जैक्ट द करेक्ट टेबल, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 4 जा 8 हियर, फिर हमने 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। So student, this is all about our self-referencing, and today in this class we have done our self-referencing. You all create a table, एक table create करेंगे according to given worksheet given in your book, example number 10.1, 10.2 and 10.3, page number 238. Okay, you all go through this table. That first example is about relative cell referencing, second one is about relative cell referencing, and third one is about mixed cell referencing, ठीक है। so you all go through this table and you क्रिएट योर ओन फार्मूला। आप इसको पहले बिना देखे, क्योंकि इसमें तो सॉल्व है, आप बिना देखे पहले उस वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे आपको अभी बताया गया कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में क्या होगा, एब्सोल्यूट में क्या होगा, और आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में क्या होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss another table related to this cell referencing.